Hello everyone. Today continue the chapter plant and increase the number. Today we study about the crop and vegetable. We know that when a plant grow in the large quantity in the palace for food, it's called the crop. And they are the two type of the crop grown in our India. First of all, the Rabi crop. The crop that like the weighted gram grown in the November to April, that will winter season, are called the Rabi crops. A crop that grow in the June to October is called Kharif crop. So rice, maize, jowar, and bajra are the Kharif crop. Vegetable like the cabbage, cauliflower, radish being grow in the winter, and vegetable like the brinjal, pumpkin they grow in the summer. Vegetable they are not grown in a large quantity. Okay, beta? And we know that the different plant not only grow in the different climate and season but also require different kind of the soil. Rice and jute grow in the clay soil and hold plenty water. On other hand, the jowar and bajra the grow in the sandy soil. Cotton grow in the well in the black soil. These are mainly found in the Gujarat, Maharashtra. Tea, the plant that need the moist soil, they grow in the slope and hill area, just like Darjeeling. Coconut tree grow in the coastal area, such as the coastal area they found in the Kerala and Tamil Nadu. Maize also grow in the dry soil in the plain or hill area, such as the Ramanujganj, you know very well. Onion and groundnut is the needed the well drained sandy soil. And we study about how the farmer grow and good and healthy crops. For healthy crop, farmer know about the soil, climate, and season grown on it. Second, the plowing and preparing the soil. Third, they choose the healthy and rich seed for sowing. Fourth, they are the manure, the fertilizer, and the soil, and manure added to the soil and increase the production. Fertilizer like urea, sulfate, but that is the not used for the large amount. They are the harmful for the soil also. And after all, protection the crop from the storage of the seed. Farmer protect the crop against the grazing animal like the cow, goat. So we make the fencing around the field. Pest like the grasshopper, caterpillar. So use the pesticide for prevent for this the crop. And when grain is the reap and crop are the harvested and stored. After harvesting, the uh, grain need to protect against the moisture. They keep the safe from the rat, moles, and birds and squirrel and insect. So you must be stored in the airtight sealed container. Plant like the living things need love and care. Under favorable condition, they grow well. A good crop add for to wealth our country. बच्चों इस चैप्टर में हमने जाना कि प्लांट जो होते जो क्रॉप्स होते हैं, अब जन जो लार्ज अमाउंट में जो हम लोग उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रॉप्स। और ये जो होता है दो तरह का होता है, एक रबी, एक हो गया रबी क्रॉप्स, और दूसरा जो होता है आपका रबी क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप जो होते हैं जो विंटर सीजन में लगते हैं, जैसे कि ठंडी का मौसम आएगा जो लगेगा, यानी कि आपका नवंबर से अप्रैल बीच में वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया ये जो समर में जो अभी लगेगा, जो आपका स्टार्टिंग होगा जून से और अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा, जो इसको हम लोग खरीफ करते हैं। इसमें राइस में जो है जो हमको लगता है। और मैं बोला वेजिटेबल जो है वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं लगा जाता है। ठीक है, उसको कम एरिया में हम लोग लगाते हैं, क्योंकि वेजिटेबल जो ज़्यादा ग्रो कर भी लेंगे तो उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो उससे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक बात और भी बताना चाहूँगा कि ये जो जितने भी प्लांट है वो सब ऐसे नहीं है कि एक तो क्लाइमेट अलग चाहिए, सीजन भी चाहिए, और उसके साथ डिफरेंट उसका सॉइल भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप देखे होंगे कि हर जगह हर तरह का सॉइल
नहीं लगता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसका उस तरह सॉइल चाहिए, मिलना भी चाहिए। जैसे कि जहाँ राइस और जूट की जहाँ खेती होगी वो उसको क्ले सॉइल चाहिए, क्योंकि उसमें होल्ड करता है प्लेंटी वाटर। एंड अदर हैंड जो ज्वार एंड बाजरा है वो जो सैंडी सॉइल में चाहिए, उसको कम पानी भी चाहिए। कॉटन जो है ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में, जो हमें बताया कि ज़्यादातर आपका गुजरात में, महाराष्ट्र एरिया में होता है। और टी जो है उसको स्लोपिंग चाहिए हमेशा, उसको मोस्ट उसका पानी हमेशा उसको चाहिए, तो वो देखिए ज़्यादातर आपका दार्जिलिंग एरिया में होता है। ठीक है, और कोकोनट जो है उसको एक तो पहली बात उसको ये चाहिए कि अगर नमकीन पानी चाहिए तो वो, अब वो तो नमकीन पानी तो आपको कोस्टल एरिया में समुद्र के किनारे मिलेगा। जैसे समुद्र किनारे जो कोस्टल एरिया जो है, केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, इस सब एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। और उसके बाद जो मेज जो है उसको उसको ड्राई सॉइल चाहिए, है ना, प्लेन और हिल एरिया दोनों चाहिए, जिससे आपका जो आप देखे होंगे भौरमल जब से एरिया जो है, हमारे जो आसपास का एरिया जो है वहाँ बहुत ज़्यादा मक्का की खेती होती है। और ओनियन जो ग्राउंडनट जो है उसको वेल ड्रेनेज सिस्टम, वेल ड्रेनेड एंड सैंडी सॉइल चाहिए। ठीक है, अब रहा बात कि अगर ये फार्मर कैसे ग्रो कर पाते हैं अपने हेल्दी हेल्दी क्रॉप्स को, इसके लिए ज़रूरी है कि उन लोग को कुछ बातें जो है मैं बताना चाहूँगा जो ज़रूरी है, जो उन लोग को चाहिए, उसके बगैर वो नहीं कर सकते हैं। एक गुड हेल्थ के लिए अच्छे बीज चाहिए, अच्छे खाद चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है आज के डेट में क्या होता है कि मैन्योर की ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जो कंपोस्ट जो होता है, जिसमें आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉरी वेस्टेज होता है उसको ज़मीन के अंदर डालने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर, जो उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है कि केमिकल से ज़्यादा अगर आप जो इस फर्टिलाइज़र वाला इस्तेमाल कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि सॉइल का जो है उसका फर्टिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब रहा बात की जो क्रॉप हो गया उसको फिर उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, उसको स्टोरेज भी अच्छा से होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में भी क्या है कि उत्पादन तो हो गया लेकिन रखने का जगह नहीं है, खुले जगह में रखिएगा तो दिक्कत है। पहली बात तो देखिएगा कुछ ऐसा जैसे सब्जी जो हम लगाते हैं आसपास में, तो ये जो जानवर जो है जो वो सब क्या है कि आपको जो ग्रेजिंग कर लेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए फेंसिंग जो होता है चारों तरफ जो बेड़ा लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आज ही मैं टीवी में सुन रहा था कि ग्रास ऊपर बहुत जो उड़ के आए हैं, जो एमपी में पहुंच गए हैं, जो कहने का मतलब है वो क्या करेंगे कि जो बेचारे जो मेहनत जितना से किसान किए हैं उसके मेहनत पे पानी फिर जाएगा, तो उसके लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, लेकिन बात है कि पेस्टिसाइड का भी एक बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक है, उसके बाद एक बात और भी है कि हमें ये जितने भी है उसको कोशिश करना चाहिए कि उसका मॉइस्चराइजर ना हो, उसको एयर टाइट कंटेनर में। देखिए हमारे देशों में सिलोज की कमी है, सिलोज का मतलब होता है बड़े बड़े कंटेनर होता है जिसमें रखा जाता है, ऐसे खुले में जो बोरे में रखा जाता है, उससे वो बेटर तरीका है, जो मॉडर्न तरीका है, जो हमारे देश की ज़रूरत है। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे देश में उसकी भी व्यवस्था हो रही है। ठीक है, उसके बाद उसका ये जो जितने भी कहा जाता है कि अन्न है हमारे लिए, अगर वो जो प्लांट है लिविंग थिंग्स है, नीड लव और केयर, वो जो प्लांट जो है मालूम होना चाहिए उसको भी लव और केयर की ज़रूरत है। और वो तभी वो क्या होता है कि उसको फेवरेबल कंडीशन वो ग्रो के लिए होता है। और अच्छा क्रॉप कहा जाता है, एक गुड क्रॉप ऐड टू आवर वेल्थ आवर कंट्री, हमारे एक देश का धरोहर एक धन है। अगर वो जितना देखिए, इसलिए देखिएगा कि एक फिल्म जो आया था उसमें गाना गाया था कि मेरे देश की धरती उजले सोना चांदी, इस तरह जो गाना था। ठीक है, उजले मोती, इस तरह जो होता है, ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो अन्न है वो हमारे लिए वो एक तरह सोने चांदी के बराबर ही है। ठीक है, तो अगर इसको अगर केयर किया जाए, अगर उसको अच्छा से किया रखा जाए, उसका उसका ग्रो से लेकर उसका स्टोरिंग तक अगर व्यवस्था किया जाए तो हमारा देश महान हो जाएगा। ठीक है, बस आज पर यही तक बेटा।